استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا، استغفار کا زبان پر جاری رہنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ عظیم تسبیح صرف 5 خوش نصیب لوگوں کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ باقی لوگوں کی زندگی غفلت، غرور اور دنیا کی محبت میں ایسی الجھ جاتی ہے کہ استغفار کی یہ بابرکت تسبیح ان کی زبان پر آ ہی نہیں پاتی۔ استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتی ہیں۔ پہلا انسان وہ ہے جو، محترم ناظرین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار کرنا بہت آسان عمل ہے۔ زبان سے صرف 2 الفاظ استغفر اللہ کہنا شاید بظاہر ایک معمولی سا عمل لگ سکتا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور حیران کن ہے۔ ہر شخص کے پاس زبان تو ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں استغفار کا عمل داخل ہی نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنا ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی توفیق ہے جو صرف خاص لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے استغفر اللہ کے الفاظ نہیں نکلتے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی دل پر بوجھ آتا ہے، جیسے ہی کوئی غلطی یاد آتی ہے، فوراً ان کی زبان پر استغفار جاری ہو جاتا ہے۔ یہ فرق دراصل دلوں کی کیفیت کا فرق ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے دل میں استغفار کی رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا پاتے۔ حالانکہ استغفار تو وہ عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عظیم عمل کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنا صرف 5 خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ 5 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل واقعی استغفار کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان پر اکثر استغفر اللہ کے الفاظ جاری رہتے ہیں، لیکن یہ 5 کون ہیں؟ یہ وہ راز ہیں جسے جان کر انسان اپنی زندگی بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کی زبان پر بے اختیار استغفر اللہ آ جائے، اگر آپ کو بار بار استغفار کرنے کا دل چاہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہر انسان کو یہ نصیب نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کبھی استغفار کی طلب پیدا ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر آپ کی زبان پر استغفر اللہ جاری ہے تو اس نعمت کی قدر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جنہیں استغفار کی تسبیح پڑھنے کی خاص توفیق عطا کی گئی ہے، اور یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا انسان، استغفار کی تسبیح ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ عمل بہت آسان لگتا ہے کہ انسان زبان سے چند الفاظ ادا کرے اور کہہ دے استغفر اللہ، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی روحانی کیفیت ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ انہیں خوش نصیب لوگوں میں سب سے پہلا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر دل کی گہرائی سے شرمندہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں یہ بھی کوئی غلطی یاد آئے، اس کا ضمیر بے چین ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے بے اختیار استغفار کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ ایسا انسان گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے کہ اس سے جو بھی غلطی ہوئی وہ اللہ کے سامنے ایک جواب دہی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی احساس اس کے دل میں ندامت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں حقیقی شرمندگی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی زبان خود بخود استغفر اللہ کہنے لگتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے صرف ایک تسبیح نہیں رہتے، بلکہ اس کے دل کی آواز بن جاتے ہیں۔ جب رات کی تنہائی ہوتی ہے نا اور انسان اپنے اعمال کے بارے میں سوچتا ہے، تو ایسے لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ ان کے دل کو سکون دیتے ہیں اور انہیں یہ امید دلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انسان سچے دل سے استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کی ندامت ہی وہ دروازہ ہے جس سے استغفار کی روشنی انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ جس دل میں گناہ کا احساس ہی نہ ہو، وہاں استغفر اللہ کے الفاظ بھی صرف زبان تک محدود رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنی غلطیوں پر واقعی شرمندہ ہوتا ہے،
उसके लिए अस्तगफार एक आदत बन जाती है। वो चलते फिरते, बैठते उठते हर हाल में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता है। ऐसे लोग जानते हैं कि इंसान कामिल नहीं होता, उससे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन असल कामयाबी इसमें है कि इंसान अपनी गलती को पहचान ले और फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे। इसीलिए वो बार बार कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। यही अल्फाज उनके दिल को नरम रखते हैं और उन्हें अल्लाह के करीब ले जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अस्तगफार की तस्बीह सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि जब दिल में नदामत पैदा हो जाए तो फिर जुबान पर खुद ब खुद अस्तगफिरुल्लाह जारी हो जाता है। और यही वो कैफियत है जो इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब ले आती है। दूसरा इंसान, अस्तगफार की तस्बीह हर किसी की जुबान पर जारी नहीं होती। बज़ाहिर ये चंद अल्फाज कहना आसान लगता है, लेकिन दर हकीकत अस्तगफार एक ऐसी रूहानी कैफियत है जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जिनके दिल में अल्लाह की तरफ रुजू करने का सच्चा जज्बा मौजूद हो। उन्हीं खुश नसीब लोगों में दूसरा इंसान वो है जो अल्लाह की रहमत पर पुख्ता और कामिल यकीन रखता है। ऐसा शख्स कभी भी मायूसी के अंधेरों में नहीं डूबता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। जब इंसान को यकीन हो जाता है कि अल्लाह बेहद मेहरबान और बख्शने वाला है, तो उसके दिल में उम्मीद पैदा होती है। यही उम्मीद उसे बार बार अस्तगफिरुल्लाह कहने पर आमादा करती है। वो जानता है कि अगरचे उससे गलतियां हो गई हैं, अगरचे उसकी जिंदगी में गुनाह भी आए हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। उसी यकीन के साथ वो आजिज़ी से कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये अल्फाज उसके लिए सिर्फ एक दुआ नहीं होते, बल्कि अल्लाह की रहमत पर उसके ईमान का इजहार बन जाते हैं। ऐसा इंसान कभी ये नहीं सोचता कि उसके गुनाह बहुत ज्यादा हैं और अब मुआफी मुमकिन नहीं, बल्कि वो हर बार नए यकीन के साथ अस्तगफार करता है। उसे यकीन होता है कि अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। यही वजह है कि उसकी जुबान पर अक्सर अस्तगफिरुल्लाह जारी रहता है। वो सुबह उठते ही अस्तगफार करता है, दिन के कामों के दरमियान भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, रात की खामोशी में भी अपने रब से मुआफी मांगता है। दर हकीकत अल्लाह की रहमत पर ईमान ही वो कुव्वत है जो इंसान को बार बार तौबा की तरफ वापस ले आती है। अगर किसी इंसान के दिल में उम्मीद ना हो तो वो कभी भी अस्तगफार की तरफ माइल नहीं होता। मायूसी इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है, जबकि उम्मीद उसे अल्लाह के करीब ले आती है। इसीलिए वो शख्स जिसके दिल में अल्लाह की रहमत का यकीन होता है, वो बार बार कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐसे लोगों के दिलों में एक अजीब सा सुकून होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह अपने बंदों को मुआफ करना पसंद करता है। उसी यकीन की वजह से वो अपनी जिंदगी को अस्तगफार से भर देते हैं। उनके लिए अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि उम्मीद, सुकून और अल्लाह से ताल्लुक का जरिया बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अस्तगफार की तस्बीह सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, क्योंकि जब दिल में अल्लाह की रहमत पर ईमान मजबूत हो जाए ना, तो जुबान पर खुद ब खुद अस्तगफिरुल्लाह जारी हो जाता है और इंसान हर हाल में अपने रब की तरफ रुजू करता रहता है। तीसरा इंसान, अस्तगफार की तस्बीह हर जुबान पर जारी नहीं होती। बज़ाहिर ये चंद अल्फाज कहना आसान मालूम होता है, मगर हकीकत में अस्तगफार एक ऐसी कैफियत है जो सिर्फ उन दिलों में पैदा होती है जिन्हें अल्लाह ने खास नरमी और खुशू अता फरमाया हो। उन्हीं खुश नसीब लोगों में तीसरा इंसान वो है जिसे दिल की नरमी नसीब हो, जिसके अंदर आजिजी और अल्लाह के सामने झुक जाने का जज्बा मौजूद हो। ऐसा इंसान जब भी अपनी जिंदगी पर नजर डालता है ना, तो उसे अपनी कमजोरियां याद आती हैं। उसकी जुबान से बेअख्तियार अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज निकलने लगते हैं। दिल की नरमी दरअसल एक अजीम नेमत है। बाज दिल ऐसे होते हैं जो गुनाह के बाद भी सख्त रहते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता। लेकिन जिस इंसान के दिल में खुशू और आजिजी पैदा हो जाए, उसके लिए हर छोटी बड़ी गलती एक याद दहानी बन जाती है कि वो अपने रब के सामने मुआफी मांगे। यही वजह है कि ऐसे लोगों की जुबान पर अक्सर अस्तगफार जारी रहता है। वो जब कुरान सुनते हैं, जब किसी नसीहत को सुनते हैं या जब तन्हाई में अपने आमाल को याद करते हैं, तो उनका दिल नरम हो जाता है। वो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोग अल्लाह के सामने तकब्बुर नहीं करते, बल्कि हमेशा आजिज़ी अख्तियार करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि इंसान जितना भी नेक क्यों ना बन जाए, वो अपने रब का मोहताज ही रहता है। यही एहसास उन्हें बार बार अस्तगफार की तरफ ले आता है। जब दिल में खुशबू पैदा होता है तो इंसान की जुबान से बेसाख्ता निकलता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये अल्फाज उसके दिल को मजीद नरम कर देते हैं, उसे अल्लाह के करीब ले जाते हैं। दिल की नरमी इंसान को अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जह करती है।
ऐसा शख्स दुनिया की मसरूफियात में भी अपने रब को नहीं भूलता। कभी तन्हाई में बैठकर अस्तगफार करता है, कभी चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, और कभी सजदे में गिरकर कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। यही वो कैफियत है जो इंसान के दिल को जिंदा रखती है और उसे रूहानी सकून अता करती है। इसीलिए कहा जाता है कि अस्तगफार की तस्बीह सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जिनके दिल नरम और आजिज़ी से भरे होते हैं, क्योंकि जब दिल में खुशू पैदा हो जाए ना, तो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, और जब इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान ले तो उसकी जुबान पर खुद ब खुद अस्तगफिरुल्लाह जारी हो जाता है। यही नरमी और यही खुशू इंसान को बार बार अस्तगफार की तरफ ले जाता है और उसे अल्लाह की रहमत के करीब कर देता है। चौथा इंसान, अस्तगफार की तस्बीह हर इंसान के हिस्से में नहीं आती। बहुत से लोग दुनिया की मसरूफियात में इस कदर उलझ जाते हैं कि उन्हें अपने अमाल और अंजाम के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता। मगर कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच दुनिया की आर्जी चमक दमक से आगे बढ़कर आखिरत की हकीकत तक पहुंच जाती है। यही वो लोग हैं जिन्हें अस्तगफार की हकीकी कदर का एहसास होता है। उन्हीं में चौथा इंसान वो है जो दुनिया की फानी रंगीनियों से हटकर आखिरत की फिक्र में जिंदगी गुजारता है। ऐसा इंसान जानता है कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं। दौलत, शोहरत, खूबसूरती और आसाइशें सब वक्ती हैं। एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से रुखसत होकर अपने रब के सामने हाजिर होना है। जब ये हकीकत दिल में गहराई तक उतर जाती है तो इंसान की जिंदगी का रुख बदल जाता है। वो अपने आमाल के बारे में संजीदा हो जाता है और उसकी जुबान पर बार बार अस्तगफिरुल्लाह जारी होने लगता है। उसे एहसास होता है कि आखिरत की कामयाबी के लिए अपने गुनाहों से मुआफी मांगना जरूरी है। जो लोग आखिरत की फिक्र में जीते हैं वो दुनिया की आर्जी खुशियों में खो नहीं जाते। वो हर दिन को एक मौका समझते हैं कि अपने रब के करीब हो सकें। इसी सोच के साथ वो बार बार अस्तगफार करती हैं। जब भी उन्हें अपनी किसी कोताही का एहसास होता है तो वो आजिजी के साथ कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये अल्फाज इंसान के दिल को याद दिलाते हैं कि असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। ऐसे लोग दुनिया के दरमियान रहते हुए भी अपने दिल को आखिरत से जोड़ रखते हैं। वो जानते हैं कि इंसान की असल जिंदगी कब्र के बाद शुरू होती है। यही वजह है कि वो अपनी जिंदगी को अस्तगफार से भर देते हैं। सुबह हो या शाम, तन्हाई हो या मसरूफियत, उनकी जुबान पर अक्सर अस्तगफिरुल्लाह जारी रहता है, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अस्तगफार गुनाहों को मिटा देता है और आखिरत में निजात का सबब बन सकता है। दर हकीकत आखिरत की फिक्र इंसान के दिल में एक खास संजीदगी पैदा करती है। ये संजीदगी उसे अपनी गलतियों को पहचानने पर मजबूर करती है। जब इंसान अपने अंजाम के बारे में सोचता है ना, तो उसके दिल में खौफ और उम्मीद दोनों पैदा होती हैं। इसी कैफियत में उसकी जुबान से बार बार निकलता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये अल्फाज उसके लिए एक दुआ भी होते हैं और अपने रब की तरफ वापसी का ऐलान भी। इसीलिए कहा जाता है कि अस्तगफार की तस्बीह सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो दुनिया की फानी हकीकत को समझकर आखिरत की फिक्र में जिंदगी गुजारती हैं। पांचवा इंसान, अस्तगफार की तस्बीह हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात दुनिया के कामों में मसरूफ रहते हैं, मगर उनकी जुबान पर कभी अस्तगफिरुल्लाह जारी ही नहीं होता। उसकी एक बड़ी वजह माल और सोहबत भी होती है, क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहता है आहिस्ता आहिस्ता उसी रंग में रंग जाता है। इसीलिए पांचवा इंसान वो खुश नसीब है जो नेक लोगों की सोहबत को अख्तियार करता है और जिक्र व नसीहत को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेता है। ऐसे माहौल में रहने वाला इंसान खुद ब खुद अस्तगफार की तरफ माइल हो जाता है। जब कोई शख्स नेक और अल्लाह को याद करने वाले लोगों के साथ बैठता है ना, तो उसके दिल पर एक खास असर पैदा पड़ता है। ऐसी मजालिस में अल्लाह की याद होती है, दीन की बातें होती हैं और इंसान को अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जो किया जाता है। उन बातों को सुनकर इंसान के दिल में एक बेदारी पैदा होती है। उसे अपनी कमजोरियां याद आने लगती हैं और वो दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगने लगता है। इसी कैफियत में उसकी जुबान से निकलता है अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बन जाते हैं। नेक लोगों की सोहबत इंसान को गफलत से निकालती है। जब इंसान बार बार नसीहत सुनता है, कुरान की आयात सुनता है, अल्लाह की रहमत और मगफिरत का जिक्र सुनता है, तो उसके दिल में अस्तगफार की अहमियत पैदा होती है। फिर वो सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये अल्फाज उसके लिए एक दुआ भी बन जाते हैं और उसकी रूह को सुकून भी देते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में जिक्र को एक आदत बना लेते हैं। वो जहां भी बैठते हैं अल्लाह की याद को तरजीह देते हैं।
کبھی وہ تنہائی میں استغفار کرتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کبھی نصیحت سن کر اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جاتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ ان کی زندگی اللہ کی یاد سے بھر جاتی ہے۔ در حقیقت نیک صحبت انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے نا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے اس کی زبان پر بار بار استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔